Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 21. Our chapter name is Financial Statement. Our chapter name is Financial Statement. Today is 31 date, 12 month 2020. Okay, chapter number 12. Chapter name is Financial Statement. Chapter name is Financial Statement. Okay. Thursday. In our today's video, we will discuss about profit and loss account format. I have told you in before video the profit and loss account format. I am telling you how to make profit and loss account statement again. Then we will do illustration relating to it, and in our today's video we will discuss about operating profit and net profit. In operating profit there is use of operating expenses. What does operating expenses means? What does non-operating expenses means? We will discuss in our today's video. Okay. First of all, we should make the account for profit and loss account. Okay. Firstly, what entries should be written on this side? Debit side means to gross loss. Okay. Next one is office expenses. Office expenses include, what are the items which should be included in office expenses? Which are as salaries, two salaries. You will write down here two salaries and wages. Okay, you will write down these items here. Two salary and two salary to wages, two rent, two printing and stationeries, two postage, two lighting, two insurance premium, two telephone charges, two legal charges, two traveling expenses, two audit fees, two trade expenses, two general expenses. You will write down in office expenses, which should be written on debit side. These are the office expenses. Next we come to selling and distribution expenses. What are these? Selling and distribution expenses. Next we come to selling and distribution expenses. Okay, what does selling and distribution expenses include? Selling and distribution expenses include the item which should be included on the debit side. What are these? These are to carry inward, outward आता है बच्चा. Inward purchase के लिए यूज होता है. To carry outward this side, bad debts, advertisement, commission, brokerage. Every item should be written on debit side under sales and distribution expenses. Clear to you? Okay. Next one is miscellaneous expenses. I am not writing the expenses which are included, should be written on the debit side of office expenses and selling and distribution expenses. I have told you in our before video, so I am not going to write. Next one is miscellaneous expenses. Miscellaneous expenses में कौन से expenses include होते हैं? Discount received, repair. Discount ये भी नहीं लिखेंगे. देखिए, discount received और discount allowed होता है. ठीक है. अब देखिए miscellaneous expense allowed करेंगे तो वो expense है. तो यहाँ रखना discount allowed आता है. Received इस साइड पे आएगा. ठीक है. Discount allowed to repair, depreciation, to interest, to entertainment expenses, to loss on sale of asset, which should be coming on this side only. Clear to you, bacha? Next thing, which should come on credit side, all income, and because profit and loss account is a nominal account, all incomes and gain should come on this side. First of all, you should write down by gross
profit. By gross profit you should write on credit side. Gross profit done. Next thing you write down from credit side is rent, which rent received, by interest received on loan, by commission received. I am writing the short form, you have to write down full. By discount received. All income should be written on credit side. By profit. अब याद रखना, टू टर्म्स होती है, बेडेड रिकवर्ड और बेडेड. बेडेड जो होते हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं, और बाय बेडेड्स रिकवर्ड कहाँ आएंगे? बेडेड्स रिकवर्ड आएंगे. बाय बेडेड्स रिकवर्ड. प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज मिसलेनियस एक्सपेंस. क्लियर टू यू बच्चा? नेक्स्ट थिंग is miscellaneous income. Miscellaneous expenses comes on debit side. Miscellaneous income. Clear? Now, if credit side is more than debit side, then if credit side is more than debit side, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से, तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट. जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, तो क्या होगा? नेट लॉस. ओके. देखिए, नेट लॉस जो होता है वो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा. नेट लॉस कब होगा? जब डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से. देखो, डेबिट साइड ज्यादा है, जैसे डेबिट साइड में 5 लाख रुपीज आए हुए, ठीक है. अब इस साइड को भी आपको 5 लाख कंप्लीट करने हैं, इस साइड में, ठीक है. अब नेट लॉस मीन्स इस साइड पे यहां तक टोटल हो रहा है 3 लाख, तो लॉस में कितने गए? 2 लाख गए. तो नेट लॉस ये कब हुआ? जब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से. अब देखिए, अब यहां आएगा नेट प्रॉफिट जब क्रेडिट साइड ज्यादा है. अब क्रेडिट साइड में 5 लाख है, इस साइड में 3 लाख थे, तो नेट लॉस हटाओ यहां. तो 3 लाख ऊपर साइड थे, अब यहां पे 5 लाख करने हैं, तो 2 लाख नेट प्रॉफिट में ज्यादा है, तो टोटल 5 लाख हो जाएंगे. बोथ साइड क्लियर? दिस वी हैव डन द अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करा है हमने. इसमें आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक आइटम, हाउसहोल्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं, हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं प्रोपराइटर के, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट वी कम टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स एंड नेट प्रॉफिट. ठीक है, आज हम करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट विच आर incurred, which are earned. Operating profit are the profit which are earned through normal operating activities of business. Operating profit is the profit. Operating profit वो profit है जो earn होता है through normal operating activities. Through normal operating activities of business. Normal activities of business से जो profit मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? Operating profit. Operating profit is also known as EBIT. EBIT means earning before interest and tax. Earning before interest and tax. Okay, now you should know what operating expenses
मीन्स व्हाट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल गया, जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, जो प्रॉफिट आप अर्न करते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ठीक है। जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, वर्किंग वाली एक्टिविटीज होती है, उसको उसका जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसको बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स से जो प्रॉफिट आता है उससे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी वही है, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नॉर्मल कोर्स, एक्सपेंसेस विच आर related to normal activities of business। जो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो अब हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते टाइम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, अगर हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, अब अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस की वजह से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मींस जो कंपनी को ऑपरेट, कंपनी के बिजनेस को, जो बिजनेस को ऑपरेट करते करते टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुए उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सारे इंक्लूड होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। बैड डेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो आई एम गोइंग टू राइट डाउन अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का की डेफिनेशन पता चल गई आपको। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सैलरीज एंड वेजेस सारे ऑफिस एक्सपेंसेस से, रेंट, लाइटिंग सारे ऑफिस एक्सपेंसेस से। इसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आते थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो किस एक्सपेंसेस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। डिस्काउंट और बैड डेट्स ये कौन से एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमें ये क्या निकाला मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं। नाउ यू शुड नो द
नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हाउ टू गेट नेट प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है, क्या फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट निकालने का। ओके, नेट प्रॉफिट देखो कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, तो आप बोलोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था, क्या आता था बच्चा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था। बट अब हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेस करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इनकम्स ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, इनकम जो होगी वो ऐड करेंगे। क्लियर, कह रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता चल गया नेट प्रॉफिट निकालने का। नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस meaning you have all I have already told. Now you should know the meaning of non operating expenses. non operating expenses क्या होते हैं, वो expenses होते हैं जो incidentally, non operating expenses वो expenses होते हैं जो incidentally हो गए, incidentally हो गए। जैसे फायर लग गई, फायर हो गई, अब हमने सोचा तो नहीं था ये चीज कि एक्सपेंस होगा, पर इंसिडेंटली एक्सपेंस हो गया, फायर हो गई। फायर, थेफ्ट, डोनेशन दे दिया, अगर आपने बाई चांस किसी को डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दी, इंटरेस्ट दे दिया आपने किसी को लोन पे, ये वो एक्सपेंसेस है जो इंसिडेंटली हो गए मेन कोर्स ऑफ बिजनेस में। ओके, इंसिडेंटली हो गए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करते करते ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली हो गए, इंसिडेंटली हो गए, तो इनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से। अब आपको पता होना चाहिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है। जिन इनकम का हमें पता नहीं था वो हमें मिल गई, जैसे कि कौन सी होती है, जैसे अब मैं आपको क्या बता रही हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम मतलब आपको कुछ रिसीव हो रहा है, मीन्स रिसिप्ट। ठीक है, जैसे आपको रेंट रिसीव हो गया, ठीक है, गेन हो गया कोई भी एसेट पे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी सेल करते हैं आपको कोई गेन हो गया, तो ये कहां पर आता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है। ठीक है, सेकेंड वन आपको रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव। ठीक है, अब आपको मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस बता दिया। अब आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, पेज नंबर 21.18 पे हम वो करते हैं, उसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना सिखा रखा है। देखिए उसमें क्या क्या आइटम दे रखे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले।
आपकी बुक में पेज नंबर 21.18 पे क्वेश्चन है। पर पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है वो है 1 लाख का। नेट प्रॉफिट 1 लाख, रेंट रिसीव्ड रेंट रिसीव 10,000। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ आपकी बुक का, ठीक है। गेन दे रखा है आपकी बुक में, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक बार देख लेते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना दे रखा है, 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। डोनेशन क्या दे रखी है, 2,000। देखो अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको निकालना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता था ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता था। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा होगा कि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो आप ध्यान में रखो, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में प्लस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहां तक फॉर्मूला लर्न हो गया आपको। देखिए अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो टर्म है कहां से मिल जाएगी, ऊपर से। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो तो क्या टर्म मिलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे नेट प्रॉफिट से आप कैसे निकालोगे, तो हमारा फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट में क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर आ रहे हैं, ऐड हो गए। देखो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन
ओके बच्चा, यहां तक क्लियर हुआ? देखिए, ग्रोस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह आप क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में है, प्लस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड में। बट आपको अब निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। एमपी साइड है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, और ये माइनस में क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो गई, इधर आएगी, और इधर क्या बच जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, अब एनपी कितना है? देखिए 1 लाख। एनपी कितना है? 1 लाख। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से हैं? देखो, रेंट रिसीव्ड और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये क्या है? इनकम। एक्सपेंस कौन से हैं? डोनेशन दिया, ये हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है, मीन्स 22,000 प्लस में आ जाएंगे, माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 10,000 प्लस में 15,000, मतलब 25,000। तो टोटल करो 1,22,000 माइनस में 25,000, तो कितनी अमाउंट आएगी? 97,000। सिंपल। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चा? आपको कुछ नहीं करना था, आपको अगर नेट प्रॉफिट दे रखा हो तो नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला राइट डाउन कर लोगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां गिवन है, इस टर्म को चेंज कर लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो गए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस हो गई, तो हमारा क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारी कितनी अमाउंट आई है? 97,000। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन ऑफ द टॉपिक विच इज लेफ्ट ऑफ आर this chapter is balance sheet. Okay, balance sheet, I will tell you about the balance sheet, needs and important of balance sheets. Okay bacha, till then you should read till page number 21.18 and try to do till illustration number 13. Thank you bacha very much.